آج کا جرگہ اس فیصلے کو پہنچا ہے کہ خون بہا میں گلزار خان کی بیٹی کو زوار خان کے بیٹے رقیب خان کے ساتھ نکاح کے بعد خون بہا میں دیا جائے گا۔ داجی میں نہیں جاؤں گی، داجی پلیز مجھے نہیں جانا۔ بڑی حویلی، وہ روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ نہیں میری بچی، تمہیں جانا ہوگا، وہ ایک قلب سے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ پر داجی تم وہاں خوش رہو گی، یہ میرا دل کہتا ہے، وہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے بولے۔ نہیں داجی پلیز، آپ رقیب لالا کو جانتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو۔ حور خان زادہ ہاؤس یعنی بڑی حویلی کے دہلیز پر کھڑی تھی۔ آج اس سے یہ حویلی بالکل انجان لگ رہی تھی۔ یہ وہ حویلی تھی جہاں آنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہاں پہ موجود ہر شخص کی چہیتی تھی وہ بی جان حور۔ ثنا بی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، حور بیٹا اندر چلو۔ زوار خان اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولے، نہیں نہیں۔ وہ ڈر کر نفی میں سر ہلانے لگی، گویا وہ گھر نہ ہو کوئی جہنم ہو۔ خان کیا ہوا بچی کو، اتنا ڈری ہوئی کیوں ہے؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں ڈر رہی ہے پگلی، آجو میرا بچہ، اپنی بی جان پہ بھروسہ رکھو۔ بی جان اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی۔ حور گڑیا پانی پیو جلدی سے۔ ثنا اسے صوفے پر بٹھا کر پانی پلانے لگی۔ نہیں نہیں مجھے نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ چلو جلدی سے پیو۔ اوکے۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا، گٹ۔ ثنا اس کا گال تھپک کر بولی، ثنا جاؤ حور کو رقیب کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ بی جان کی آواز نے حور پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ پر بی جان آپ تو لالا کو جانتی ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب صرف ہماری مرضی چلے گی، بی جان کے بجائے بابا جان بولے۔ تو ثنا مجبوراً حور کو رقیب کے کمرے میں ڈھیر ساری تسلیوں سمیت چھوڑ آئی۔ ہمدان خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ہمدان خان کی شادی ان کے چچا زاد مہر خانم سے ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ان کے بڑے بیٹے گلزار خان نے جنم لیا، اور پھر ان کے چھوٹے بیٹے زوار خان نے جنم لیا، اور پھر بہت منتوں مرادوں کے بعد اللہ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا جن کا نام انہوں نے آمنہ رکھا۔ گلزار خان کی شادی خاندان سے باہر سائدہ بیگم سے ہوئی، جو نہایت سادہ اور محبت کرنے والی ملنسار خاتون ثابت ہوئی۔ گلزار خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے جمال خان، منجلے بیٹے سجاد خان اور چھوٹے بیٹے زمان خان تھے، اور پھر زمان خان سے 7 سال چھوٹی حورین آئی جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ زوار خان کی شادی اپنی خالہ زاد صنوبر سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، وقیب خان اور رقیب خان۔ دونوں جڑواں تھے۔ وہ دونوں سجاد کے ہم عمر تھے، اور ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام ثنا تھا، جو زوار کی ہم عمر تھی۔ آمنہ کی شادی خاندان سے باہر اصفر خان سے ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام سلمیٰ تھا اور اس سے چھوٹی کا نام سیما تھا، اور بیٹے کا نام واصف تھا جو رقیب کا ہم عمر تھا۔ رقیب کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر بیڈ پر پڑے وجود پر پڑی، اور اس کے اندر باہر ایک آگ سی دوڑ گئی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ تم کسی سے پوچھ کر میرے روم میں آئی؟ ہاں؟ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ وہ چچا جان، وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولے تو آخر بولے کیسے۔ بکواس بند کرو، وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر غرایا۔ سوری لالا، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں لیٹی تھی، وہ ہمت کر کے بولتی کی، پر یہ کیا؟ رقیب کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک سے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ غصے میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ زوردار آواز سے بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ وہاں روتی رہی۔ رقیب کچھ تو خدا کا خوف کرو، بچی ہے وہ 15 سال کی، اور تم اس پر اس قدر ظلم کر رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ بی جان برہم ہو کر بولی۔ سجاد کو خدا کا خوف آیا میرے بھائی میرے دوست کو مارتے ہوئے؟ بولیں بی جان، اسے میرے بھائی پر رحم آیا تھا جو اب میں اس کی بہن پر رحم کروں؟ نہیں بی جان، میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، وہ اپنے غصے پہ قابو کرتے ہوئے بولا۔ ادھر آؤ، کمرے میں گمبھیر آواز گونجی۔ جی میں، وہ گھبرا کر بولی۔ نہیں میں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ جی، وہ کچھ الجھ کر بولی۔ ظاہر ہے تم ہی آؤ گی، وہ غصے سے دھڑا۔ وہ فوراً بیڈ کے پاس پہنچی جہاں وہ نیم دراز تھا۔ میرے پیر دباؤ۔ جی، وہ فوراً اس کے پیر دبانے لگی۔ ویسے تمہارا نام کچھ عجیب نہیں ہے، مطلب حورین، اب تم کوئی حور تو ہو نہیں، بلا فضول میں تم جیسی چھپکلی کا نام حور رکھ دیا۔ وہ اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر مزید چڑھانے لگا۔
हूर का दिल किया कि वो इसका खूबसूरत चेहरा नोच ले, पर अफसोस वो ऐसा कुछ भी करने से कासिर थी। खैर ये बताओ तुम कौन सी क्लास में हो? वो संजीदगी से पूछने लगा। मैं वो हैरानगी से बोली। जी जी आप ही। वो दोनों हथेलियां इसकी तरफ फैलाकर बोला। अंदाज खासा डरामाई था। मैट्रिक में। वो सर झुकाकर बोली। ओके, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। वो एक बात बोलूं? वो हिचकिचाकर बोली। बोलो। वो लंबी सांस खारिज करता हुआ बोला। मेरा पुराना स्कूल यहीं पास है, क्या मैं वहाँ नहीं जा सकती? वो मध्यम आवाज़ में बोली। हाँ जा सकती हो। वो मध्यम मुस्कान के साथ बोला। हूर तो इसके इस अंदाज पर हैरान रह गई। हैरान होना तो बनता ही था, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल लाइलम थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके गुड नाइट, जाओ अब। वो फौरन संजीदा होता हुआ बोला। कहाँ जाऊँ? कहीं भी। मुझसे क्या पूछ रही हो? वो बेजारे से बोला। पर बीजा ने मुझे यहीं रहने को कहा था। वो टेंशन में बोली। ओके फाइन, जाओ सोफे पर सो जाओ। वो कंबल ओढ़ते हुए बोला, और वो भी शुक्र अदा करती हुई सोफे पर बैठ गई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी चुटिया बना रही थी। चुटिया बनाकर वो पलटी और बेड तक आई। मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाए। और वो शौक से इसे देख रहा था। वो वाइट यूनिफॉर्म में वाकई कोई हूर दिख रही थी। वो इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि रकीब के दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, जिसे वो खुद भी नहीं समझ सका। इसने बेखुदी में आकर हूर को कलाई से पकड़ कर खींचा तो वो इसके चौड़े सीने पे जा गिरी। हूर हैरान होकर इसे देखने लगी, पर मुकाबिल की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो पलकों की बाढ़ गिराने पर मजबूर हो गई। कई लम्हे ऐसे ही गुजर गए। लाला, अंदर आती सना गड़बड़ाकर वापस मुड़ गई, और हूर शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। जल्दी करे, देर हो रही है। वो इसके सीने से उठते हुए बोली तो इसने इसे दोबारा खींचा और इसके माथे पर बोसा दिया। चलो तुम नाश्ता करो, मैं आता हूँ। वो इसे बाजू से पकड़कर खुद से अलग करते हुए बोला। तो उसने भी ना आओ देखा ना ताओ, फौरन कमरे से भागी। वो अभी स्कूल से आई थी तो देखा पुप्पो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। वो लॉन्च में आई और सबको सलाम किया और पुप्पो के गले लग गई। कैसी है मेरी गुड़िया? वो इसके माथे पर प्यार करते हुए बोली। बिल्कुल ठीक, वो मध्यम आवाज़ में बोली। खुश हो? वो इसका हाथ थाम कर बोली। जी। होर इधर आओ। सलमा, जो इसकी बड़ी भाभी और पुप्पो की बेटी थी, सलमा ने होर को अपने पास आने का इशारा किया। जी भाभी। वो पुप्पो के पास से उठकर सलमा के पास बैठ गई। तुम खुश हो ना? वो इसे मोहब्बत से देखते हुए बोली। जी मैं खुश हूँ। भाभी, बेबे और दादी कैसे हैं? वो फिक्रमंदी से बोली। बिल्कुल ठीक हैं। सलमा आपा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रकीब जो हूर को छोड़ने आया था, कॉल आने की वजह से वहीं ठहर गया था, और अब अंदर आने के बाद अंदर का मंजर इसको तैश दिलाने के लिए काफ़ी था। क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ? वो इसे कड़ी नज़रों से देखकर बोली। क्योंकि आप इस कातिल की भाभी हैं। वो मुठिया बींच कर बोला। हाँ तुमने सही कहा, मैं इस कातिल की भाभी हूँ, और ये इस कातिल की मनकूहा है। वो अपनी बहन सीमा की तरफ इशारा करके बोली। और एक मिनट, ये इस कातिल की छोटे भाई की मनकूहा है। वो सना की तरफ इशारा करके बोली। और ये तो कातिल की बहन है। वो हूर को कंधों से पकड़कर बोली। अरे यार, ये देखो, ये इस कातिल की फुप्पो है। किस किस से भागोगे रकीब? वो चलाकर बोली और फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो सुर्ख निगाहों से हूर को देखते हुए निकल गया, जैसे सारी गलती इसी की हो। हूर कमरे में आई तो रकीब इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। हूर को देखते ही इसके अंदर गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो गुस्से में आगे बढ़ा और हूर को जबड़े से पकड़कर बोला। बहुत बगैरत है तुम्हारा भाई। मेरे मासूम भाई को मार दिया और बाद में इस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा दिल कर रहा है मैं आज वही करूं, तुम्हें जान से मार दूं। और पर नहीं, मैं तुम्हारे भाई की तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। वो इसे बेड पर पटक कर बोला। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी सज़ा शुरू हो चुकी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में एक पल भी सुकून का मैसर नहीं होने दूंगा, समझी? वो इस पर झुक के और वो जर्द चेहरा लिए खुश्क आंखों से इसे देख रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रोए या मार मार के रोए दाढ़े मार मार के रोए। आज तक किसी से किसी ने ऐसे बात नहीं की थी सिवाय इसके। वो हमेशा से इससे ऐसे ही बात करता था। अब से नहीं, तब से जब वो सिर्फ इसके चचा की बेटी थी। 3 साल पहले रकीब, वकीब, सजा तीनों ने तुर्की के टूर से वापसी पर प्लान बनाया था कि वो तीनों सबको सरप्राइज़ देंगे।
वो तीनों बगैर बताए बड़ी हवेली टपक पड़े थे। आज सब बड़ी हवेली में जमा थे। ऐसा हर इतवार को होता था। हर इतवार वाले दिन सब कभी बड़ी हवेली में जमा होते तो कभी खान बेला हूर के अब्बू के का घर। आज सब बड़ी हवेली में जमा थे। वो लोग अभी पोर्च में थे कि ऊपर टेरेस पे खड़ी हूर की नज़र इन पर पड़ी तो इसको एक शरारत सूझी। वो भागती हुई नीचे गई और किचन से 2 अंडे उठाकर सतून के पीछे खड़ी हो गई। वकीब और सजाद पीछे पीछे बातें करते हुए आ रहे थे। रकीब आगे बढ़ा ही था कि कोई चीज़ बहुत बुरी तरह इसके इसके इस पर आके लगी थी और सतून के पीछे खड़ी हूर सामने आकर जोर से चलाई थी। ये देखे मीना के मोहतरमा ने अंडे किसको मारे हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। और सामने का मंजर देखकर हूर को लगा कि वो अभी ज़मीन बोस हो जाएगी। सॉरी, वो गर्दन झुकाकर मिनमिनाई। वकीब और सजाद ने जब रकीब की हालत देखी तो हंस हंस कर लूट फूट हो गए। एक अंडे की जर्दी रकीब के बालों पे लगी थी और दूसरे अंडे की जर्दी इसके पूरे मुंह को पीला कर गई थी और अंडे के छिलकों के टुकड़े ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। ये सब क्या है? वो हूर पर धड़ा था। वो ये अंडा है, वो हिम्मत करके बोली। बदतमीज लड़की, तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? जहर लगती हो तुम मुझे, और बदतमीजियाँ करने के बाद ये जो तुम्हारी मासूम बनने की अदाकारी है ना, मैं खूब समझता हूँ। दफ़ा हो जो, मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारी इन आंखों से जिनमें सिवाय फ़रेब के कुछ नहीं। वो गुस्से में चलाते हुए बोला, और वो क्या बोल रहा था इस बात का अंदाज़ा शायद इसे खुद भी न था। जस्ट चिल ब्रो, वकीब इसका कंधे पर हाथ रखकर बोला। शोर की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए थे। रकीब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुड़िया को डांटने की? जवार खान ने कड़क लहजे में कहा। दादी आप। वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि हूर ज़मीन बोस हो गई। हूर। सब हूर को पुकारते हुए इसकी तरफ बढ़े। सुबह जब रकीब की आंख खुली तो वो फर्श पे सुबह जब रकीब की आंख खुली तो वो फर्श पे गठरी की मानिंद पड़ी थी। इसके दिल को कुछ हुआ। वो अपने दिल को डांटता हुआ हूर तक आया। हूर, हूर उठो। हूर, देर हो रही है, स्कूल नहीं जाओगी? कई बार आवाज़ देने के बाद भी जब वो ना उठी तो वो घुटनों के बल बैठ के इसने इसके गाल पे हाथ रख के देखा तो वो बुखार में तप रही थी। इसने इसे उठाकर बिस्तर पर लटाया और नीचे जाने लगा कि सना से कहे कि इसे नाश्ता करवा के दुआ दे दे। वो जब रात को कमरे में आया तो सना हूर को सूप पिला रही थी। गुड़िया, थोड़ा सा पी लो ना। नहीं आपी, गुल, बस मेरा दिल नहीं कर रहा, वो बैक क्रॉन से टेक लगाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर आते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम, दोनों ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया। लाला मैं चलती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें। सना खड़े होते हुए बोली। हाँ, एक कप चाय भेज दो। ठीक है लाला, फिर मैं चलती हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। अब तबीयत कैसी है? सना के जाने के बाद तो वो इसे पूछने लगा। ठीक हूँ, वो सर झुकाकर मध्यम आवाज़ में बोली। गुड, कल तक तुम मुझे बिल्कुल फिट चाहो। एक ख़ास सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, वो बेड की दूसरी तरफ लेटते हुए बोला। कैसा सरप्राइज़? सरप्राइज़ है, कल पता चल जाएगा, वो मायने खेस मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। वो लोग अभी सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले थे पर रकीब ने स्कूल वाले रोड के बजाय गाड़ी दूसरे रोड पर डाल दी थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हूर घबरा कर बोली। सरप्राइज़ है मेरी जान, वो मसरूर से अंदाज में बोला। कि कैसा सरप्राइज़? हूर को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सरप्राइज़ इसका जो भी होगा इसके लिए अज़ियत का समा होगा। बस थोड़ी देर, फिर सरप्राइज़ तुम्हें और तुम्हें सरप्राइज़ को देखोगी, वो कह के लगाते हुए बोला। उतरो। वो गाड़ी एक बुसीदा सी इमारत के पास रोककर बोला। यहाँ हम किस लिए आए हैं? वो अटक अटक कर बोली। तुम्हारा सरप्राइज़ यही तो है, वो शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोला। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे चल रही थी। डर के मारे इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वो लोग इस बुसीदा इमारत के अंदर थे जहाँ चारों तरफ डब्बे ही डब्बे थे। वो लोग चलते हुए सीधे हाथ की तरफ मुड़े और वहाँ मौजूद जीनों पर चढ़ने लगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? और इस जगह को देखने लगी जहाँ आकर वो बिल्कुल खो सा गया था। इसकी आंखों में अजीब सा कर्ब था। वो फिर भी खामोश रहा और इर्द गिर्द देखता रहा, कभी मुस्कुराता तो कभी रंजीदा हो जाता। क्या हुआ? और आगे बढ़ी और इसके कंधे पर हाथ रख के बोली। वो जैसे ख्यालों की दुनिया से फौरन बाहर आया और हाल इसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। वो मुड़ा और यकटक देखने लगा। आज 1 माह हो चुका है, पर ऐसा लगता है कि अभी की ही बात हो। जख्म अब भी ताज़ा है और इन जख्मों की का दर्द अब भी अपने अरूज पर है। मैं हर रोज़ मरता हूँ जब वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आता है।
اور ہر روز جیتا ہوں اس منظر کو بلانے کی کوشش میں، پر ہمیشہ ناکامی ہی مقدر بنتی ہے۔ میں برا نہیں بننا چاہتا، پر ہر بار وہ منظر، وہ تکلیف، وہ حادثہ مجھے برا بنا دیتے ہیں۔ وہ لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا، آپ برے نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، میں برا ہوں اور میں برا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے بازو سے دبوچ کر بولا، جانتی ہو یہاں اس عمارت میں میرے بھائی کو قتل کیا تھا تمہارے بھائی نے۔ دکھ مجھے اس بات کا نہیں یارا، دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ میرا یار میرے دوسرے یار کا قاتل ہے۔ درد اس بات کا ہے کہ میرا یار نہیں تھا، آستین کا سام تھا۔ وہ حور کو جھٹک کر بولا، جس کی وجہ سے حور کا سر سامنے بنے پلر سے جا لگا اور حور کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ ایک بار میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ سجاد لالا نے وکیل لالا کو ان کی غلطی پہ مارا تھا اور وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ سب غلطی سے ہوا تھا۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی، میں پاگل ہوں سچ میں بہت بڑا پاگل ہوں جو تمہیں اچھا سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم میرا درد سمجھو گی، پر نہیں، تم صرف اپنے بھائی کو ہی سمجھو گی۔ تمہیں پتہ ہے وکیل تمہیں کتنا پیار کرتا تھا، گڑیا گڑیا اور بس گڑیا، اور تم اسے اتنی جلدی بھول گئی، افسوس۔ وہ دکھ سے بولا اور اس ظلم کو اپنے درد میں اس کے سر پر لگی چوٹ نہ دکھی، اور اس ظالم کو اپنے درد میں اس کے سر پر لگی چوٹ نہ دکھی۔ مجھے بھی وکیل لالا بہت عزیز تھے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے بھی دکھ ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جھوٹ، اگر تمہیں دکھ ہوتا تو تم میرا درد سمجھتی۔ تم عورت ذات ہوتی ہی مطلب پرست ہو، وہ بھی ایسی ہی تھی تم جیسی مکار۔ تم عورتوں کے جب مطلب پورے ہو جاتے ہیں تو نہ تو منہ موڑ لیتی ہیں اور دوبارہ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ جسے ہم نے چھوڑا ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں آپ سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتی، اور پلیز آپ مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ نم آواز میں بولی، وہ تو وقت بتائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا، بس کریں، گھر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولی، اللہ خیر کرے، حور ابھی تک واپس نہیں آئی، خان بتا کروائیں، رقیب کے ساتھ ہی ہے نا؟ بی جان فکر مندی سے بولی، ارے آپ فکر نہ کریں، دونوں ساتھ ہیں، صبح رقیب نے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے۔ آغا جان انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ دونوں ساتھ ہیں، اس لیے فکر ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اپنی چادر درست کر کے مڑی ہی تھی کہ رقیب نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر موڑا اور اس کے ماتھے پہ سے چادر ہٹاتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ وہ یکسر انجان بنتے ہوئے بولی، یہ خون کیسا نکلا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، اسے شاید خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، یہ کیا؟ وہ اپنی پلکوں کی باڑ کبھی گراتی تو کبھی اٹھاتی، دل تھا کہ بے قابو ہو گیا تھا، شرم و حیا سے گلابی رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ رقیب کو اپنے دل میں عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کر رہا ہوں؟ چوٹ دیکھ رہا ہوں، وہ اسے خود سے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑے مجھے، حور مدھم آواز میں بولی۔ نہیں، وہ اسے ڈرانے کے لیے ذرا غصے سے بولا۔ اچھا چھوڑیں۔ حور کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ خڑوس انسان محبت کوئی ایسے کرتا ہے ڈرا ڈرا کے؟ حور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں، وہ تو صرف تمہاری چوٹ دیکھنی تھی اس لیے۔ وہ اسے سے دور ہو کر بولا، اچھا چوٹ دیکھنی تھی تو دور سے بھی دیکھتے نا، اتنا چپکنے کی ضرورت کیا تھی خڑوس انسان؟ حور دل میں اس پر غصہ نکالنے لگی۔ چلو چلیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ آ گئے آپ لوگ؟ ثنا حور کو اندر آتے دیکھ کر بولی۔ لالا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ کھانا کھایا ہے؟ ثنا نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بامشکل مسکرا کر بولی۔ چلو آؤ، میں تمہیں پاستا بنا کر دیتی ہوں۔ وہ اس کو کچن کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی دل نہیں کر رہا۔ وہ ان کو روکتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے حور، تم ایسے تو نہیں تھی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ مدھم مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ آرام کرو۔ وہ موڑی اور اپنے کمرے کی سمت بھرنے لگی اور ثنا اس کی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر خود ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی پر اس کے گھر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج اس نے جو حرکتیں کی تھی وہ بار بار یاد آ رہی تھی۔ کیا کروں یار، گھر جاؤں یا نہیں؟ جانا تو ہے، چلے جاتے ہوں یار، کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال جواب کرنے لگا اور بالآخر وہ اس نتیجے کو پہنچا کہ اسے گھر نہیں جانا چاہیے۔
हूर ने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे और रकीब अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो अपनी टेंशन कम करने के लिए कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, जो बेसुध था। इसकी टेंशन फिर भी बरकरार थी। तकरीबन 11:30 बजे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो इससे लगा रकीब होगा, पर वो तो हमेशा बगैर नॉक किए अंदर चला आता था। आज इतनी शराफत पे इसकी हैरानी तो बनती थी। आ जाए, इसने हैरान होकर इजाज़त दी, पर दरवाज़ा खोलते ही चचा जान को देखकर हैरानी की बजाय इसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। चचा जान, आप आइए ना, बैठें प्लीज़। वो सामने पड़े दो सिंगल सोफों में से एक पर बैठने का इशारा करते हुए खुद दूसरे सोफे पर जा बैठी। बेटा, रकीब का फ़ोन आया था कि वो कह रहा था कि वो आज नहीं आएगा और कल सुबह शहर जाएगा। वापसी का कोई पता नहीं। ओह अच्छा, खैर चाचा जान, आपकी तबीयत कैसी है? दादी से आपकी बात हुई, वो कैसे हैं? हाँ, होती है, बिल्कुल ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। वो लंबी सांस खारिज करते हुए बोले। हूर जी, वो इनकी तरफ बगौर देखते हुए बोली। तुम्हारा अपने दादी से मिलने को दिल नहीं करता? वो नम आवाज़ में बोले। करता है, बहुत करता है, पर आप तो जानते हो ना, वो रंजीदा आवाज़ में बोली। रकीब को आने दो, मैं इससे बात करता हूँ। वो खड़े होते हुए बोले। थैंक्स, चलो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले। इसने भी होले से सर को इस बात में जनिश थी। चचा जान के जाने के बाद वो उठी और कबर्ड की तरफ आई। कबर्ड खोलते ही इसकी नज़र ब्राउन कलर के बॉक्स पर पड़ी, जिस पर इसकी नज़र रोज़ पड़ती थी, पर कभी उठाने की हिम्मत न हुई। आज पता नहीं इसके दिल में क्या समाई कि इसने इस बॉक्स को उठाया और उलट पुलट करके देखने लगी। बॉक्स को लेकर वो बेड की पायनी पर बैठ गई और उलट पुलट कर देखने लगी, पर वो बॉक्स लॉक था। और वो उठी और कपड़ में कपड़ों को इधर उधर करने लगी, पर इसे ऐसा कुछ ना मिला जिससे वो बॉक्स खोल पाती। कुछ सोचते हुए इसने अपने बालों में से एक बॉल पेन निकाली इसने अपने बालों में से एक पिन निकाली, जो बॉक्स उठाकर बॉक्स इस पिन से खोलने लगी। थोड़ी सी मेहनत के बाद बिल आखिर बॉक्स खुल गया। वो बॉक्स खोलकर इस तस्वीर को देखने लगी। कितनी खूबसूरत है ये, आखिर ये है कौन? वही होगी रकीब की मोहब्बत। ये वाकई काबिल मोहब्बत है, इतनी खूबसूरत है ये कह कर ये कि मैं इसके रूप की दीवानी हो गई। वो तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली। वो तस्वीर रखकर हाथ उठाने ही लगी थी कि पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम बचक कर मुड़ी तो सना को देखकर एक लंबी सांस खारिज की। आप? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि इसके बोलने से पहले सना बोल पड़ी। तो मैं लगा कि लाला होंगे। सना मुस्कुराकर बोली। हाँ, मुझे यही लगा। अच्छा हुआ और तुमने खुद कोशिश की माजी के पन्ने खोलने की। वो इसके बराबर में बैठते हुए बोली। मतलब? हूर ने उलझ कर पूछा। मतलब ये खत पढ़ो। वो बॉक्स में से खत उठाकर इसको देते हुए बोली। वो खामोशी से खत खोलकर पढ़ने लगी। रकीब, तुमने मुझे तोड़ दिया, तुमने मेरे मान को तोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसा कर सकते हो तुम? वो तुम्हारा भाई गुनाहगार है, पर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं गलत दिखती हूँ और तुम्हारा भाई सही। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुम्हारे भाई ने, और तुम मुझे छोड़कर अपने भाई का साथ दे रहे हो। शेम ऑन यू रकीब। मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहूँगी, और तुम ये याद रखो कि तुम मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। फ़कत ज़रताशा। ये सब क्या है अप्पी गुल? हूर इस खत को वापस रखते हुए बोली। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे तल्ख हकीकत। वो नम आवाज़ में बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से बोली। ये लाला की पहली बीवी है, ज़रताशा, जिससे उन्होंने छुप कर निकाह किया था। कल भाई इनको लेकर आ रहे हैं। क्या? हूर को ऐसा लगा कि सातवें आसमान एक साथ इस पर टूट पड़े हों, और इसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर रोए, पर आंसू तो इसकी आंखों में ही खुश्क हो गए थे। अगली सुबह खासी रोशन थी, पर हुर के लिए ये सुबह बहुत तारीक थी। वो सुबह सवेरे उठी और नमाज पढ़ी। जब दुआ मांगी तो सिर्फ कि या अल्लाह मुझे सब्र दे। वो अभी नीचे आई थी कि नाश्ता करके स्कूल जाए और रकीब या जरताशा में से किसी से भी सामना ना हो, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाहर रकीब की गाड़ी का हॉर्न बजा तो इसे लगा कि वो यहाँ से नहीं हिल पाएगी। सब हाल में जमा हो गए थे। और भी वहीं आकर खड़ी हो गई। रकीब अंदर आया तो इसकी गोद में जामनी रंग के कंबल में लिपटा बच्चा था, या फिर शायद बच्ची थी। रकीब अंदर आया और सबको नज़रअंदाज करता हूर के पास आया, और वो बच्चा इसकी गोद में देते हुए बोला। ये मेरी बेटी है, और आज से तुम्हारी भी। तुम इसकी माँ हो। तुम्हें इसकी परवरिश करनी है, बहुत अच्छी परवरिश करनी है, इतनी अच्छी कि हमारी बेटी की शराफत की मिसाल दुनिया दे।
अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा मशकूर रहूँगा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। वो ये सब कहकर रुका नहीं, वापस घर से चला गया। हूर की आंखों से कई आंसू बह निकले। ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे कि अल्लाह ने इससे इसका शौहर भी वापस लौटा दिया और बेटी से भी नवाज दिया था। वो खुश थी, बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर। इसने इस नन्ही सी गुड़िया को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और झुककर इसके नरम गाल पर प्यार किया। और ये तो बहुत छोटी है, तुम इसका ख्याल कैसे रखोगी? सना फिक्रमंदी से बोली। अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखूंगी। तुम कर लोगी ना? वो फिक्रमंदी से बोली। जी मैं कर लूंगी। हूर मुस्कुरा कर बोली। अच्छा फिर तुम इसका ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। सना इसका गाल थपक कर बोली। जी। हूर मुस्कुरा कर बोली। रकीब रात को कमरे में आया तो बहुत थका हुआ था। हूर और इसकी बच्ची आराम से सो रहे थे। इसे लगा था कि हूर इससे सवाल जवाब करेगी कि ये बच्ची किसकी है, पर हूर ने तो ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो अभी और कुछ सोचता कि हूर की आवाज़ पर चूंगा आप आगे। हूर अपना दुपट्टा सर पर दुस्त करते हुए बोली। रकीब बगौर हूर का जायजा लेने लगा। वो काले रंग के लॉन के प्रिंटेड सूट में मलबूस थी। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। खाना खाएंगे आप? वो गिलास में पानी डालते हुए बोली। रहने दो, मैं ठंडी रोटी नहीं खाता, मैं ताज़ा बना देती हूँ। वो गिलास उसे देते हुए बोली। रहने दो, दिल नहीं कर रहा। वो गिलास थामते हुए बोला। और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बोली। बोलो, क्या कहना है? वो उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला। वो जरताशा क्यों नहीं आई? वो बामुश्किल बोली। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? वो आंखें खोल कर माथे पर कई बल लिए हुए बोला। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वो सर झुकाकर बोली। आंखों में आई ढेरों नमी को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर मुकाबिल से वो नमी ना छुप सकी। क्या करोगे जरताशा के बारे में जानकर? वो उसका हाथ थाम कर बोला। कुछ नहीं। वो सर को नफी में हिलाते हुए बोली। तुम जानती हो, वो जरताशा, इसके जिक्र से भी मुझे घिन आती है। इसी जरताशा के जिक्र से जिसकी बातें मैं सारा दिन करते नहीं थकता था। वो अपने बालों को हाथों में जकड़कर बोला। मेरा दिल करता है मैं अपने दिल का हर गम किसी हमदर्द को कह डालूं और आज़ाद हो जाऊं हर दुख तकलीफ से। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं सुनूंगी आपका हर दर्द। वो नम आवाज में बोली। तुम बहुत अच्छी हो, कभी किसी से मोहब्बत मत करना, वरना तुम्हें भी बहुत दर्द मिलेगा। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। वो इसकी इस बात पर बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो इसे क्या बताती कि इसे तो मोहब्बत हो गई है, वो भी इस शख्स से जो इसे कहता है कि कभी मोहब्बत ना करना। तुम्हें पता है मैं पहली बार जरताशा से कहाँ मिला था? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। यार वकीब, जल्दी कर, देर हो रही है। और ये सजाद का बच्चा कहाँ है? रकीब झंझलाते हुए बोला। हाय अरमान ही रह गया, हाय अरमान ही रह गया। ये तो मेरा कि मेरे भी बच्चे हों, एक को इधर से पकड़ूं तो दूसरा उधर भागे, और इधर से मेरी बीवी आए और कहे अजी मैं कैसे लग रही हूँ। सजाद लिविंग रूम में दाखिल होते हुए बोला। ओए तुझे किसी ने लड़की देनी है? वकीब शराब से आंख मारते हुए बोला, जिससे इसकी खूबसूरत नीली आंखें चमक उठी। बस यही फर्क था रकीब और वकीब में। रकीब की आंखें काली थी और वकीब की आंखें नीली थीं, बाकी दोनों हूबहू एक जैसे थे। मुझे तो कोई भी दे देगा, तू अपनी फिक्र कर बेटा, सजाद मुंह बगाड़ते हुए बोला। ओ हेलो, अगर तुम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर ना उठे ना तो वल्लाह मैंने तुम दोनों की हड्डियां तोड़ देनी है। वकील अपनी शर्ट के आस्तीन फोल्ड करते हुए बोला। यार उठ गए, बस हर वक्त मरने मराने को दौड़ता है ये। सजाद इसे घूरते हुए बोला। तुम लोग निकलते हो या मैं लगाऊं एक? वो मसनूई गुस्से से बोला। भाई ये ज्यादती है हमारे साथ, जालिम शख्स। रकीब रोनी सूरत बनाकर बोला। चलो सी साइड पर पे तो हम जा रहे हैं, पर अगर कोई हमसफ़र होता तो सफ़र और भी हसीन दिलकश होता। वकील आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोला, जिसे इस पर हकीकत में कोई सहर तारी हो गया हो। ओए मजनू, बस कर दे, अभी तो तेरी लैला पैदा भी नहीं हुई होगी। सजाद इसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तुम दोनों हर जगह शुरू हो जाते हो, बस यार बस करो। वकील की जवाबी कार्रवाई से पहले ही रकीब बोल पड़ा। बाद में देखूंगा तेरे साथ तो बच्चों। वकीब मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला। चल चल देख लेना। सजाद हाथ को हवा में लहराते हुए बोल पड़ा। वो लोग सी साइड के लिए निकले थे, पर रास्ते में प्लान चेंज करते हुए पहले शॉपिंग मॉल गए। यार होर पे ये कलर अच्छा लगेगा ना? सजाद एक क्रीम कलर की फुल मैक्सी वकीब को दिखाते हुए पूछने लगा।
हाँ, हमारी गुड़िया पर हर रंग जचता है, ये देखो वो ब्लू कलर की हाई हील्स, इसे दिखाते हुए बोला। हाँ, ये हूर को बहुत पसंद आएगी, वकील सजाद से बोला। और ये बच्ची है वो, ये ना ले कुछ और ले ले, सजाद हाई हील्स देखते हुए बोला। बस कर, पूरे 14 साल की हो गई है, अब तो इसे फैशन करने दे, वकील हूर की वकालत करते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था कि हूर को हाई हील्स पहनना कितना पसंद है। वकील सजाद सही कह रहा है, अभी वो छोटी है, ये सब इसके लिहाज से काफ़ी ओवर है। रकीब संजीदगी से बोला। एक्सक्यूज मी। इन तीनों ने सामने देखा तो एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। जी मोहतरमा फरमाए, रकीब इसके खूबसूरत चेहरे से मुंह मोड़कर बोला। एक्चुअली ये जो इनके हाथ में हील है, ये मुझे दे दे, मुझे यहाँ दूसरी ऐसी मिल नहीं रही। वो मुस्कुरा कर बोली और एक अदा से अपने खूबसूरत बाल पीछे करते हुए बोली। जी नहीं, ये मैंने अपनी बहन के लिए ली है। वकील गुस्से से बोला। वकील दे दो, हूर के लिए हम इसकी एज के हिसाब के सैंडल्स ले लेंगे, सजाद इसे समझाते हुए बोला। वट यू मीन बाय वट यू मीन बाय मिस्टर, मैं आपको कोई बूढ़ी औरत दिखती हूँ? वो लड़की मुंह बनाकर बोली और इसकी इस अदा पर रकीब दिलो जान से फदा हो गया। जी नहीं, एक्चुअली हमारी बहन बहुत छोटी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा, सजा ने मुस्कुराकर वजाहत दी। और मुझे लगा, वो मुस्कुराकर बोली। एनीवे, मैं जरताशा सराज, वो मुस्कुराकर बोलकर जिससे इसके खूबसूरत गालों में गड़े पड़ गए थे। मैं सजाद गुलजार खान, और ये मेरे कज़न वकीब जवार खान, और ये रकीब जवार खान। और वैसे वकीब एंड रकीब, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हो, वो खुश दिली से बोली। जी हम ट्विंस हैं, रकीब मुस्कुराकर बोला। ओह, वो अपने होंठों को सकेटते हुए बोली। एनीवे, ये मेरा कार्ड है, अपना कार्ड देते हुए बोली। ये किस लिए? वकीब कार्ड लेते हुए बोला। अगर कभी मुझसे बात करनी हो तो आसानी होगी, वो मुस्कुराकर बोली। और हम आपसे बात क्यों करेंगे? वकील मुंह बनाकर बोला। आपसे किसने कहा है कि आप मुझसे बात करें? ये कार्ड मैंने रकीब और सजाद को दिया है, वो इसके हाथ से हील्स लेते हुए बोली। ओ हेलो, इधर दो, ये तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से समझता हूँ, वो गुस्से से फंकारा। ओके बाय, मैं चलती हूँ, वो ये कहकर रुकी नहीं, वहां से चली गई और जाते जाते रकीब का दिल भी अपने साथ ले गई। कई दिन ऐसे ही गुजरते गए। रकीब और जरताशा की फ़ोन कॉल्स पर बातें होने लगी और जरताशा की बेबाक तबीयत के बायस से एक मुलाकात से मुलाकातें होने लगी। रकीब एक इज़्ज़तदार घराने का मर्द था, जिससे इसके लिए अपने घर की औरतें काबिल एहतराम थी, वैसे ही इसके लिए बाहर की औरतें भी काबिल एहतराम थी। रकीब शहर से गांव आया कि दाजी को बताया कि इसे एक लड़की पसंद है जिससे वो शादी करना चाहता है, पर दाजी ने फट से इनकार कर दिया। इनकी नज़र में मिस जरताशा एक लालची लड़की थी, क्योंकि वकीब ने जरताशा के बारे में दाजी के खूब कान भरे थे और दादी जानते थे कि वकीब सब होते देख सकता है, पर अपने भाई के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था। रकीब शहर से वापस आया और वकीब और सजाद को भी बुलवा लिया और इनको कसम दी कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी मेरे मेरे और जरताशा के निकाह की खबर ना देना। और वकीब और सजाद इसकी कसम के आगे मजबूर हो गए। आपके और इसकी निकाह के बाद क्या हुआ? आप इसे लेकर क्यों नहीं आए? वो अपने आंसू पूछते हुए बोली। इसे ये सुनकर रोना आ रहा था, बल्कि शिद्दत से रोना आ रहा था कि इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत कोई और है। तुम रो रही हो? वो हैरान होकर बोला। नहीं, मैं तो नहीं रो रही, वो रुक रुक कर बोली। क्यों रो रही हो? वो इससे मज़ीद हैरानी से दिखते हुए बोला। मैं कहाँ रो रही हूँ? वो इस बार कदरे चलाकर बोली। अपनी चोरी पकड़े जाने पर इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज तो चला लिया, पर आइंदा ऐसा मत करना, मुझे चलाने वाली औरतों से उलझन होती है। वो माथे पर कई बल लाए हुए बोला। अच्छा ना, आप आगे बताएं क्या हुआ था? वो कदरे रिलैक्स होकर बोली। कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है, वो खड़े होते हुए बोला। नहीं, मुझे अभी बताएं। आप बाद में, मुझे पता है आप बाद में नहीं बताएंगे, अभी बताएं। वो इसका हाथ दोनों हाथों में थाम कर बोले, जैसे इसने अगर अभी हाथ छोड़ा तो वो भाग जाएगा। यार अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, वो झंझला कर बोला। मैं और गुस्सा नहीं तो? वो अपनी खूबसूरत हरी आंखें घुमाकर बोली। मैं और गुस्सा नहीं तो क्या जानना चाहती हो तुम? वो सोफे पर वापस बैठते हुए बोला। आपका माजी, आपकी मोहब्बत की था। वो आगे कुछ कहती कि रकीब इसकी बात काट कर बोला। और आपकी मोहब्बत का जवाल है ना हूर, यही सब जानना है ना तुम्हें? वो सुर्ख आंखों से इसे देखते हुए बोला। जो भी समझ लें। वो सर झुकाकर मध्यम आवाज में बोली। यानी कि तुम सुनकर रहोगी? वो दीवार को देखते हुए बोला। हाँ। वो भी इसी सिमत देखते हुए बोली। निकाह के बाद हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। शादी के तकरीबन 2 माह बाद जरताशा ने डायमंड
जरताशा ने डिमांड की कि मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं। मैंने ये बात वकील से डिस्कस की तो इसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि दादी का बहुत दिल दुखेगा। वैसे भी हमें किस चीज़ की कमी है कि हम अपने हिस्से का मुतालबा करें। रकीब को भी वकील की बात से इत्तफाक था, इसलिए रकीब ने सोचा था कि आज शाम को जाते ही वो जरताशा को इनकार कर देगा। वो शाम को जरताशा से यही बात करने वाला था कि जरताशा ने एक मेडिकल रिपोर्ट उसे ला कर दी और खुद मुस्कुराती हुई दूसरे सोफे पर जा बैठी। रकीब ने नासमझी से जरताशा को देखा और फिर लिफाफा खोलने लगा, पर लिफाफा खोलते इसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। ताशा ताशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो इसे बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। आई डोंट बिलीव इट कि मैं पापा बनने वाला हूँ। आई लव यू ताशा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया ताशा, वो इसको दोनों हाथों से थामते हुए बोला। ताशा, आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, ना कोई इनकार करूंगा और ना ही कोई एक्सक्यूज़ करूंगा। वो इसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला। सच? वो मुस्कुराकर बोली। सच, उसे लगाते हुए बोला। तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो ना। वो इसके कॉलर के बटन से खेलते हुए बोली। तुम कुछ टाइम सब्र करो, मैं फिर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो इसका माथा चूमते हुए बोला। ओके, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, चलिए आज शॉपिंग पर चलते हैं। वो अपने बाल एक अदा से झटक कर बोली। ओके चलो चलते हैं माय डियर लव। वो इसको मोहब्बत से देखते हुए बोला। रकीब की आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंदी थी कि इसे जरताशा की आंखों में लालच ना दिखी। फिर क्या हुआ खान, आपने प्रॉपर्टी इसके नाम की? चचा जान से आपने प्रॉपर्टी कैसे ली? वो इसे पूछने लगी। और आगे का सफ़र बहुत कठिन था, बहुत दुश्वार था, तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी, जानती हो। और मैंने अपना एतबार खोया, मैंने अपना प्यार खोया, और ये दो वाहिद चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं मिल सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और वो सब याद आने पर वो थके हुए अंदाज में इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। और बस और हिम्मत नहीं मुझ में और बर्दाश्त करने की। मेरा दिल करता है कि हर तकलीफ़ उड़ जाए, मुझे छोड़ जाए। तुम्हें पता है जब वो वकीब और मैं छोटे थे तो हमें बीजान हमें परियों की कहानी सुनाया करती थी। एक कहानी में तो आसमान से परियां लोगों की तकलीफ को इनके कंधों से उठाकर ले जाती थी। मैं भी चाहता हूँ कि कोई परी आए और मेरा हर गम अपने कंधे पर उठाकर ले जाए। वो थके हुए अंदाज में बोला। आप सो जाएं, आप बहुत थक गए हैं, आप प्लीज़ आराम करें। हूर इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। वो आंखें मूंदते हुए बोला। अगली सुबह खासी रोशन थी। रकीब अपनी आंखें मसलते हुए उठा। सामने बेड पर इसकी 7 दिन की बेटी पड़ी रो रही थी। रकीब को बहुत दुख हुआ और साथ में गुस्सा भी आया कि इसने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी ऐसी औरत को दी है जो इसकी बच्ची की सौतेली माँ है। वो कभी नहीं कर पाएगी इससे मोहब्बत, और मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो मेरी बच्ची को सगी माँ बनकर पाल लेगी, इसकी परवरिश करेगी, इसे मोहब्बत देगी। ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि होर की आवाज़ पर चौंका। मेरी गुड़िया, बस ये देखो मामा ने फीटर बना लिया है, मेरा बच्चा बस। वो इसे बाहों में भरकर प्यार करते हुए बोली और वो फीटर मिलते ही खामोश हो गई। आपकी नींद शायद गुड़िया के रोने से ख़राब हो गई। असल में मुझसे दूध जल्दी नहीं बनता ना, तो सॉरी, वो शर्मिंदा से बोली। नो इट्स ओके। मैं मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगा। मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, वो बच्ची को कोट में डालते हुए बोली। ठीक, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। वो किचन में आई तो इससे समझ नहीं आई कि क्या बनाए। कुछ सोचते हुए इसने चाय चढ़ाई। 1 कप चाय में मोहतरमा ने 6 चम्मच पत्ती डाली और 10 चम्मच चीनी, और फिर से आटा उठाकर पराठा बनाया। जो पराठा कम किसी मुल्क का नक्शा ज़्यादा लग रहा था। अंडा बनाना तो इसे आता था, तो तमाम चीज़ों में सिर्फ अंडा ही खाने के लायक था। नाश्ता कर लें आप, वो नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। वो सोफे पर बैठता हुआ बोला। ये पराठा है? वो धाड़ा था। जी, वो दांत निकालते हुए बोली। दांत अंदर करो, पराठा बड़ा अच्छा बनाया है, जो दांत भी निकाल रही हो। वो इसे घूरते हुए बोला। वो फौरन मुंह बंद करके बेड की पानी पर बैठ गई। रकीब ने जैसे ही चाय का घूंट भरा तो इसका हलक तक कड़वा हो गया। इसका दिल किया कि वो ये चाय फौरन उगल दे, पर हूर के चेहरे पर जैसे ही नज़र पड़ी खुद ब खुद मीठी लगने लगी, क्योंकि हूर इसे ही देख रही थी और अंदाज ऐसा था जैसे पूछना चाह रही हो कि चाय कैसी लगी, अच्छी या बुरी। चाय तो बहुत मज़े की है, वो चाय का दूसरा घूंट भरते हुए बोला। सच? वो खुशी से उछल कर बोली। अंदाज खासा बचकाना था, पर रकीब को अच्छा लगा। इसी रकीब को जो हमेशा इसे इसके बचकाने अंदाज में हमेशा डांटता था। इसी रकीब को जिसे इसकी हरी आंखों से उलझन महसूस होती थी। हाँ बिल्कुल, वो अपने इसी संजीदा अंदाज में बोला।
और वो अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि अपनी बच्ची को रोते देखकर इसके पास गई और इसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी, पर वो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस रोए जा रही थी। आप नाश्ता करें, पता नहीं इसे क्या हुआ है। मैं इसे बीजा के पास लेकर जाती हूँ, वो इसे देखेंगी इसे क्या हुआ है। वो इसे गोद में हिलाते हुए बोली, लाओ इसे मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ। वो सोफे से उठते हुए बोला। हूँ ने रोती हुई बच्ची को इसकी गोद में डाला और परेशानी से इसे देखने लगी। मेरा बच्चा चुप कर जाओ गुड़िया, पापा की जानी। वो इसे लेकर सोफे पर बैठ गया और भी इसके बराबर में आकर बैठ गई। आप इसे मुझे दे दें, आपसे नहीं होने वाला, हुर गुस्से से बोली, क्योंकि बच्चे का रो रो कर रंग खतरनाक हाथ तक नीला हो गया था। क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ इसका। तुम लगती क्या हो इसकी, तुम्हारी बेटी नहीं है तो प्लीज़ इसे मुझे संभालने दो। तुम खुद को संभाल लो, वही बहुत है। रकीब भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया था और ऊपर से हूर का डांटना इसे बहुत बुरा लगा और गुस्से में जो इसके मुंह में आया बोलता चला गया। हूर ने यकदम से अपने हाथ पीछे कर ली, आंखों में ढेरों आंसू सिमट आए। सही तो कह रहे हैं वो। हूर हूर ये तेरी बेटी नहीं है, ये जरताशा और इनकी बेटी है। तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू इससे ऐसे इस बच्ची पर अपना हक जताए। वो खुद को डांटते हुए बोली और सोफे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। अब तुम कहाँ मर रही हो, जल्दी आओ और इसे मेरे साथ डॉक्टर के पास लेकर चलो। वो मुड़ी, इसका दिल किया कि इसे खूब सुनाए, पर वो बच्ची की हालत देखकर खामोश होगी। जी मैं चादर ले लूँ, जल्दी करो, वो कमरे से बाहर जाते हुए बोला। वो लोग अस्पताल से आए तो बीजान इनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इन्हें हॉस्पिटल में सुबह से शाम हो गई थी। बेटा क्या हुआ, इसे कैसी है अब, ये बंदा किसी को कुछ बता के तो जाता है। बीजान फिक्रमंदी से बोली, कोई बड़ी बात नहीं है बीजान, मैं इसे शहर ले गया था डॉक्टर के पास से। 6 घंटे तो आने जाने में लग गए और फिर कुछ घंटे हॉस्पिटल में लगे। वो सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोला। हूर भी सना के बराबर में बैठ गई। लाओ इसे मुझे दो, बीजान हूर से बोली। हूर उठी और खामोशी से बच्ची को बीजान की गोद में दे दिया। रकी, मैं सोच रही थी कि लगे हाथों उसका नाम भी रख लें, बीजान संजीदगी से बोली। बीजान, ये हमें करना चाहिए और आई थिंक अभी करना चाहिए। तो इसका नाम कौन रखेगा, सना मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मैं रख सकता हूँ इसका नाम, रकीब इतने अरसे में पहली बार मुस्कुराकर बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम बाप हो इसके, बीजान मुस्कुराकर बोली। हुर खामोश नजरों से इसको देखती रही। तो ठीक है, आज से इसका नाम नूर है। रकीब हूर की तरफ देखते हुए बोला, पर इसके चेहरे पर बेहिसी के सिवा इसे कुछ भी देखने को ना मिला। वाह, बहुत अच्छा नाम है लाला। हूर की बेटी नूर, सना हूर को देखकर बोली और इसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर चूक पड़ी। बीजा ने भी इसकी खामोशी को खासा नोट किया था, इसलिए हूर को देखकर मुस्कुराकर बोली। हूर बच्चे जाओ, तुम आराम करो, नूर को मैं और सना संभाल लेंगे। वो बिना कुछ कहे खामोशी से उठी और कमरे में चली गई। रकीब तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे में दाखिल हुआ तो हूर को देखकर ठटक गया। वो फर्श पर बैठी रो रही थी, इसकी खूबसूरत हरी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। हूर, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, वो इसको बाजू से पकड़कर बोला। हाँ मुझे तकलीफ है, और वो भी दिल में, मुझे बहुत तकलीफ है, इतनी कि जिसका आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप प्लीज़ मुझे मेरे दादी के घर जाने दें, मुझे नहीं रहना यहाँ। प्लीज़ मेरा दर्द, मेरी तकलीफ मत बढ़ाएं और प्लीज़ जाने दें मुझे यहाँ से। प्लीज़ आपका बदला पूरा हो गया होगा ना अब तक, तो अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे मार दें, आपका बदला पूरा हो जाएगा, पर प्लीज़ मुझे पल पल की अजियत ना दें, प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है। वो तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगी। हूर, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ है यार, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी तुम इतना नाराज़ हो रही हो। और कीवी से कंधों से थाम कर बोला। मैं नाराज़ और आपसे बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरा मुकद्दर है, मेरी तकदीर है और बस मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज़ लेट मी गो। वो इसके हाथ अपने अपने कंधे से हटाकर बोली। क्या हुआ है, तुम मुझे एक बार बता तो दो। वो हूर का हाथ थामते हुए बोला। आपको कुछ याद नहीं, सच में आप बहुत ही कोई वो हैं। वो इसे हैरत से देखने लगी। यार क्या बोला है, एक बार रिमेंबर तो करवा दो। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। नहीं कुछ नहीं हुआ, और मैं रिमेंबर और आपको क्यों करवाऊँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। वो अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। छोड़ दूंगा, पर तुम्हें सब कुछ जानकर यहाँ से जाना होगा, मेरे माजी की एक एक बात। वो इसे बेड पर बैठाते हुए बोला। नहीं जानी आपकी मोहब्बत की दास्तान, वो नरूठेपन से बोली, मगर मैं सुनाऊंगा और ज़रूर सुनाऊंगा। वो इसका हाथ थाम कर बोला। इस दिन शॉपिंग करने के बाद मेरे वकील के पास फिर गया और इससे सारी बात डिस्कस की, तो वो
مجھ سے بہت خفا ہوا اور کہنے لگا یار تو ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو نے میری وہ ایک خواہش پوری نہیں کی، دیکھنا تو بہت پچھتائے گا، اور جب تک تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا نہ تجھے سکون ملے گا دیکھ لینا۔ وکیل سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، یا تیری خواہش تو میں اب کبھی نہیں پوری کر سکتا، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے میں شادی شدہ ہوں۔ رقیب اسے عاجزی سے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ یار گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تو نے یہاں کسی عورت سے نکاح کیا ہے، دیکھ میری بات سنی، یہ عورت بہت لالچی ہے، کسی سے کچھ بھی کر کے پیچھا چھڑا اور پھر تو میری خواہش پوری کر دے۔ وکیل اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یا تو جانتا ہے مجھے اس کی ہری آنکھوں سے الجھن ہوتی ہے، میں اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں امپاسبل، وہ بھی زرتاشا کو چھوڑ کر اسے اپناؤں بالکل نہیں۔ رقیب سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے پھر جو تیرے دل میں آئے کر۔ وکیل غصے سے لال ہوتے ہوئے بولا، چل یار میں چلتا ہوں، تاشا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں جا، تو پتہ نہیں ہاں ہاں جا تو پتہ نہیں آتا کیوں ہے۔ وکیل منہ پھیرتے ہوئے بولا، اوئے بس کر یار۔ رقیب اس کی کمر پہ دھپ رسید کرتے ہوئے بولا، رقیب تم آگے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ زرتاشا مسکرا کر بولی، کیوں آج کوئی خاص بات ہے، اور دن تو تم سو جاتی ہو اس ٹائم تک۔ رقیب مسکراتے ہوئے بولا، کیوں کوئی خاص بات ہونا ضروری ہے کیا؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں آج یار آفس میں کام بہت تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تم نے وکیل سے بات کی؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، یار پچھلے مہینے میں پورے 4 بار جا کے بات کر چکا ہوں میں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، تم پراپرٹی کا جلدی کچھ کرو، میں اپنے بیبی کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اداکاری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، آئی نو تم یہ سب ہماری بیبی کے لیے ہی کر رہی ہو، پر یار دیٹس امپاسبل، تم تو جانتی ہو نا داجی تو ہمارے نکاح کی بھی خبر نہیں ہے، اور وکیل مجھے بار بار منع کر رہا ہے، اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، اوہ تو یہ سب کیا دھرا اس کا ہے، تمہارے بھائی اصل میں تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے یہ فضول ہتھ کنڈے سناتا ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے۔ وہ طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، زرتاشا وہ میرا بھائی ہے، میں سب سن سکتا ہوں، پر اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سمجھی۔ وہ خود پر قابو پاتے، وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا بھائی تو کوئی بزرگ ہے نا جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا گناہ کبیرہ ہے؟ جلتا ہے وہ تم سے، اصل میں اس کی نیت خراب ہے مجھے لے کر۔ ارے کئی بار تو اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے میرے ساتھ، پر میں ہر بار خود کو بچا لیتی ہوں اور ہمیشہ اس کے کیے پر پردہ ڈالتی رہی۔ وہ مکاری کے آنسو بہاتے ہوئے بولی، چڑاخ۔ رقیب نے ایک چانٹا رکھ کر زرتاشا کے منہ پر مارا اور چلا کر بولا، تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، میرے بھائی پر، میرے اس بھائی پر جسے میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تمہارا بھائی انتہائی گھٹیا آدمی ہے سمجھے تم، اور تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ بھی جواباً چلا کر بولی، زبان سنبھال کر بات کرو سمجھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، جو کرنا ہے کر لو، پر ہاں میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے پراپرٹی میرے نام نہ کی تو میں ابورشن کروا لوں گی سمجھے تم۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسا نہیں کرو گی۔ وہ بے یقینی سے بولا، میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی، اور ہاں میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ تمہارا بھائی بد کردار ہے۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر بولی، ٹھیک ہے تم ثابت کر کے دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو میرے حصے کی پراپرٹی تو تمہارے نام ہوگی ہی، میں میرے بھائی کا حصے کی پراپرٹی بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ ایک ہفتے بعد، میری بہن آ رہی ہے امریکہ سے، مجھ سے چھوٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ زرتاشا اپنی نوکرانی کو وارن کرتے ہوئے بولی، جی بی بی جی۔ وہ سعادت مندی سے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ اور کھانا پکانا شروع کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ کچن کی طرف مڑتے ہوئے بولی، رقیب میری بہن آ رہی ہے، میں اس کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی، تو برائے مہربانی تم کوئی تماشا نہ کرنا، اور ہاں وہ اپنے بھائی کو بھی بلا لینا۔ وہ صوفے پر ایک ادا سے بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں یہاں تمہیں میرے بدکردار بھائی کی ضرورت کیسے محسوس ہو گئی؟ رقیب اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ میں اپنی بہن کے سامنے کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی، اس لیے، ورنہ مجھے تمہارے بھائی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اپنے موبائل فون کو گھماتے ہوئے بولی، رقیب یہ میری بہن ہے نتاشا۔ زرتاشا رقیب کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر بولی،
ओह कैसी हो बेटा, ठीक हो? रकीब खुश दिली से बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। जताशा से सिर्फ 4 साल ही छोटी हूँ, नताशा मुंह बनाकर बोली। जताशा नताशा में उम्रों के फर्क के अलावा कुछ फर्क नहीं था, दोनों आदतन भी एक दूसरे का परतू थी। रकीब चलो ज़रा खाना निकालते हैं, हमारे यहाँ 2 मेहमान आए हैं, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है? वो रकीब को जताते हुए बोली। हाँ चलो चलते हैं, रकीब खड़े होते हुए बोला। थोड़ी देर बाद रकीब और नताशा लॉन्च की तरफ भागे, क्योंकि वहाँ से नताशा की चीखों की आवाज़ आ रही थी। ये क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? वकील हैरानगी से बोला, क्योंकि वो परेशान हो गया था कि एकदम इस अच्छी भली लड़की को क्या हो गया है। तुम घटिया इंसान, मेरी बहन के साथ तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? जरताशा चलाकर बोली। रकीब देखो, मैं ना कहती थी कि तुम्हारा भाई बद किरदार है, वो रकीब के पास जाकर बोली। जरताशा ज़बान संभाल कर बात करो। रकीब ने गुस्से में आकर जरताशा के मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम और ये तुम्हारा भाई बच जाएगा क्या? नहीं बच जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे मिस्टर रकीब? जवार खान, वो अपनी बहन को गले लगाते हुए बोली। वकी वकीब चलो, इस घर में मौजूद तमाम रकम मेरे भाई का सदका समझ कर रख लो, और हाँ जो करना है कर लो। मैं भी देखता हूँ तुम और कितना गिरती हो, वो गुस्से से कहता निकल गया। वकीब भी फौरन इसके पीछे लपका। 6 माह बाद। जताशा अब क्या होगा? हमारी एक के बाद एक तरकीब बेकार जा रही है, इससे बहुत भरोसा है अपने भाई पर। मैं तो कहती हूँ ये सब छोड़ दो, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ जाए। नताशा फिक्रमंदी से बोली। डोंट वरी डियर, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो मायनी खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली। मतलब? नताशा हैरानगी से बोली। माय डियर सिस्टर, बस देखती जाओ, वो अपने फ़ोन में नंबर तलाशते हुए बोली। हेलो सजाद भाई, कैसे हैं? आपको पता है क्या हुआ है मेरे साथ? आप नहीं जानते कितने जालिम हैं ये दोनों भाई। इसने रो रो कर अपने आप पर होने वाली एक एक जुल्म की दास्तान सुना दी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाऊंगा दोनों को, सजाद संजीदगी से बोला। सजाद ज़रताशा की किसी भी बात पर दिल से यकीन ना सजाद को ज़रताशा की किसी भी बात पर दिल से यकीन ना आया, फिर भी इसने वकील को इस बसीदा इमारत पर बुला लिया। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सजाद भाई? जरताशा मस्कीन से सूरत बनाकर बोली। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें जरताशा भाभी, मैं वकील से बात करता हूँ, देखना वो अभी इससे माफ़ी मांगेगा। हाँ यार बोल सजाद, क्या बात है? वकील आखिरी सीढ़ी फलांगता हुआ बोला। वो जैसे ही ऊपर आए इन दोनों को वहाँ देखकर ठटक गया और एकदम इसके सांप तन गए। यार ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सजाद हैरानगी से बोला। यार तू छोड़ दे इनको, इनके साथ मैं खुद निपट लूँगा, वकील तनफ्फुर से बोला। वकील ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर इनकी तरफ बढ़ाया और सजाद पिस्टल देखकर फौरन इसके पास गया। इसने इसे रोकने की कोशिश की, पर इस पर तो खून सवार हो गया था और इसी हाथ था पाई में गोली वकील के सीने में जा लगी और वो सब को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और एकदम से जरताशा की हालत बिगड़ने लगी तो उसकी बहन इसे लेकर फौरन अस्पताल के लिए निकल गई और सजाद वहाँ धाड़े मार मार कर रोने लगा। और वो जरताशा डिलीवरी के बाद ही इस दुनिया से इस नन्ही परी को छोड़कर चल दी। एक बात तो बताएं, हूर अपना रोना धोना भूलकर पूछने लगी। क्या? वो इसे सवाली नज़रों से देखते हुए बोला। वकील लाला की ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो आपने पूरी नहीं की? वो इसे बगौर देखते हुए बोला। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। चलो तुम्हें तुम्हारे दादी के हाथ छोड़ आऊँ तुम्हें मैं, वो शार से बोला। नो नहीं, क्यों जाऊँ मैं? नहीं जाना मुझे, वो उठते हुए बोली। क्यों नहीं जाना मेरी चुड़ैल? वो इसे वापस खींचते हुए बोला, जिसकी वजह से हूर इसके चौड़े सीने पर जा गिरी। मैं चुड़ैल हूँ, हाँ मैं चुड़ैल, और वो जिसकी हरी हरी आंखें हैं वही जिससे वकील लाला यकीनन आपकी शादी करना चाहते हैं। वो क्या है? हाँ, वो गुस्से से लाल होते वही जिससे वकील लाला यकीनन आपकी शादी करना चाहते हैं। वो क्या है? हाँ, वो गुस्से से लाल होते हुए बोली और इसके सीने पर जोर से थप्पड़ रसीद किया। उफ यार जालिम लड़की, बहुत बुरी हो तुम, वो इसके बालों की आवारा लट खींचते हुए बोला। छोड़े मुझे, इसे अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ तो डर कर बोली। नहीं छोड़ूंगा, वो इसके एक एक नक्श को छूते हुए बोला। प्लीज़, वो रोते हुए बोली। अच्छा जाओ यार, और हाँ खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है, वो इसे खुद से अलग करते हुए बोला। जी ठीक है, वो फ़ौरन कमरे से भागी। अगर मैंने इसे इससे शादी करने की हकीकत बता दी ना तो मेरा तो ये मुंह तोड़ देगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। उठ जाए नताशा कर
उठ जाएं, नाश्ता कर लें। वो एक हाथ में ट्रे और दूसरे बाजू में नूर को लिए हुए बोली, प्लीज़ खान उठ जाएं, आज मुझे स्कूल भी जाना है। अपना कार्ड और डेट शीट लेने। वो ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, इधर आओ। वो उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए बोला, क्या हुआ? वो डर कर बोली, इधर तो आओ। वो थोड़ा बहम होकर बोला, जी। वो फौरन इसके पास पहुंचकर बोली, इससे मुझे दो। वो बाजू फैलाकर बोला। वो नूर को बिस्तर पर लटाकर उठा और हूर को अपने पास बैठा ली, इतना पास कि वो इसके सीने से लगकर बैठ गई। आंखों की अदा है मखमली मखमली, ये झालर उठे जब क़यामत क़यामत, मुस्कुराना तेरा जालिमाना वार है, जुल्म जालिम तू मेरे दिल का मकीन है। वो इसके एक एक नक्श को छूते हुए बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? वो अपना सुर्ख चेहरा मोड़ते हुए बोली, प्यार कर रहा हूँ। वो इसकी मरी मरी गर्दन को चूमते हुए बोला, प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है, मुझे अपना कार्ड लेना है। वो अपनी हथेलियाँ मसलते हुए बोली, जाओ। पर किसके साथ जाओगी? वो इसे शरारत से देखते हुए बोला, आपके साथ जाऊंगी मैं। वो उठते हुए बोली, पर मैं तो तुम्हें ऐसे ही तंग करूंगा। वो इसे वापस खींचते हुए बोला, आप ना इंतहाई बदतमीज़ इंसान है। वो मारे बेबसी के बोली, और तुम इंतहाई खूबसूरत हो। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। वो अभी अभी स्कूल से वापस आई थी। नूर को सना से लेकर वो कमरे में आई और इससे सुलाकर खुद फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर निकली तो किताबें उठाकर पढ़ने लगी। अभी याद ही कर रही थी कि रकीब कमरे में दाखिल हुआ और बोला, हूर, मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। वो कपड़ में कुछ ज़रूरी फाइल ढूंढते हुए बोला, खैरियत तो है? आप इतना अचानक अमेरिका क्यों जा रहे हैं? कहीं वहाँ? वो जानती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, क्या वहाँ? वहाँ एक खूबसूरत सी उफ। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोला। हूर का चेहरा गुस्से के मारे यकदम सुर्ख हो गया था। साफ साफ कहे ना कि वहाँ कोई गोरी आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके पास आप जा रही हैं। वो गुस्से से जलकर बोली, यार तुम कितनी जीनियस हो, तुम्हें कैसे पता चला? वो मसनूई हैरानगी से बोला, वो बहुत खूबसूरत है ना? वो बहुत खूबसूरत है क्या? वो फिक्रमंदी से बोली, खूबसूरत ऐसी वैसी? तुम्हारा तो सिर्फ नाम हूर है, पर वो तो हकीकत में एक हूर है। वो इतनी खूबसूरत है कि इसकी जितनी तारीफ करो कम है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, सच में? वो नम आवाज़ में बोली, बिल्कुल सच में। तो मैं क्या झूठा लगता हूँ मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एकदम सटपटाकर बोली, अच्छा यार, ज़रा पैकिंग तो करा दो। वो नूर को प्यार करते हुए बोला, जी ठीक है, कर देती हूँ। वो कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप कब तक वापस आएंगे? वो बैग में कपड़े रखते हुए बोली, यार क्या बताऊँ, दिल तो नहीं करेगा वापस आने का, पर कोशिश करूँगा वापस आने की एक हफ्ते के अंदर। वो इस अंदाज में बोला कि जैसे इसके कुल मता अमेरिका में हो, जिसे छोड़कर आना मुश्किल हो। अच्छा। वो नज़रें झुकाकर बोली, वो इसकी वो नज़रें झुकाकर बोली, वो इसकी इन आंखों में आंसू ना देख ले। पैकिंग हो गई? वो खड़े होते हुए बोला, जी। वो मुंह फुलाकर बोली, चलो फिर मैं चलता हूँ। वो इसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला, तो जाइए। वो रूखे लहजे में बोली, जाऊँ? हाँ, गेट की तरफ इशारा करके बोला, जी बिल्कुल। वो संजीदगी से बोली, ऐसे कैसे? वो इसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला और इसकी खुशबू को अपने अंदर तक उतारने लगा। प्लीज़। वो इसको दूर करने की कोशिश करने लगी। इससे शिद्दत से रोना आ रहा था अपनी किस्मत पर कि वो खाली दामन ही रह गई थी। इतनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद वो तनहा रह गई थी। अपना और नूर का ख्याल रखना। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, वो सिर्फ इतना ही कहने की हिम्मत ला पाई थी खुद में। रकीब को गए आज पूरे 2 दिन हो चुके थे, पर इसने इन 2 दिनों में एक बार भी कॉल करने की ज़हमत नहीं की। हूर बहुत ज़्यादा उदास थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, तो वो करे तो आखिर क्या करे। वो अभी इन्हीं सोचों में गर्क खुले आसमान को देख रही थी कि पीछे से आकर सना ने जो खबर सुनाई। पहले पहल तो इसे ऐसा लगा कि इसे इसमें कोई गलती हुई है, पर बाद में पता चला कि नहीं, ये हकीकत है। वो खुशी से उठी और भागते हुए लिविंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ बैठे अपने बाप और भाइयों को देखकर वो बेकाबू हो गई और अपने दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। दादी, कैसे हैं आप? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर फिर भी इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? कितनी कमज़ोर हो गई है ये? जवार ख्याल नहीं रखते थे क्या तुम इसका? गुलजार लाला, मैं तो सबको कहता था कि हमारी बेटी का ख्याल रखो, और सब रखते भी थे, पर ये अपना ख्याल खुद नहीं रखती। जवार खान मुअद्दब अंदाज में बोले, चलो गुड़िया, हम तुम्हें लेने आए हैं। इसके दादी इसके सर पर दस्ते शफकत से रखते हुए बोले, नहीं चाचा जान, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रकीब ब्लैक कमीज शलवार में बहुत ही डैशिंग लग रहा था, पर वो पुरवकार
طریقے سے چلتے ہوئے گلزار خان کے مقابل آ کھڑا ہو گیا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ جی بالکل، پر تب جب میں اسے اجازت دے رکھوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں گلزار خان آگے سے کچھ کہنے لگے تھے، پر رقیب ان کی اس بات کاٹ کر بولا۔ ڈونٹ وری چچو، 2-4 دن میں آپ کی بیٹی کو آپ سے ملوانے لے آؤں گا، وہ مسکرا کر بولا، اور وہاں موجود تمام نفوس اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ مطلب تم اب کوئی دشمنی نہیں پالو گے؟ سجاد حیرانگی سے بولا۔ ہاں، میں اب کوئی دشمنی نہیں پالوں گا، کیونکہ جو گرد میرے دل میں اور دماغ پر لگی تھی صاف ہو چکی ہے۔ اب سب کچھ واضح ہے میرے یار۔ رقیب و سجاد ایک دوسرے کے گلے لگے اور انہیں رقیب کی خوشبو اپنے چاروں طرف محسوس ہوئی۔ رقیب رات کے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حور نور کو سلانے میں مگن تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے تھے اور وہ دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ کوئی لگتا ہے بہت ناراض ہے، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے گلا کھنگال کر بولا، پر حور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، اپنے اسی انداز میں مگن رہی۔ کیا ہوا، ناراض ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں تو ناراض نہیں، البتہ مجھے لگتا ہے وہ امریکہ والی ناراض ہوگی۔ وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ اف یار، کوئی امریکہ والی نہیں ہے، وہ تو میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ دور ہٹیں۔ وہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ اف، پہلے ہم کو وہ قبول نہیں تھے اور اب ان کو ہم قبول نہیں، وہ بیچارگی سے بولا۔ حور، تمہیں پتہ ہے رقیب کی خواہش تھی کہ میں تم سے شادی کروں، اور میری خواہش پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اگر میری بیٹی ہو تو بالکل حور جیسی، اور اتفاق دیکھو بالکل تم پر گئی ہے نور۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ سچ؟ حور نم آواز میں بولی۔ مجھ، وہ اس کی ناک دبا کر بولا۔ پر میں آپ سے پھر بھی ناراض ہوں، وہ منہ پھیر کر بولی۔ تو کوئی نہیں، میں تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا نا، وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ریلی حور، تم بہت خوبصورت ہو، وہ ایک ٹرانس میں آ کر بولا۔ حور آئی لو یو، وہ کہہ کر رخسار چھوتے ہوئے بولا۔ حور کچھ کہو نا، وہ حور کا ہاتھ تھام کر بولا۔ حور سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا، اس کے گال شرم و حیا سے سرخ ہو رہے تھے۔ کیا؟ وہ بامشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ یہی کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ہے، وہ آنکھیں موند کر بولی۔ کیا ہے؟ رقیب شرارت سے پوچھنے لگا۔ وہی جو آپ کو ہے وہی ہے مجھے، وہ شرم سے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ سچ؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ جی، وہ مسکرا کر بولی۔ اور اسی طرح دو محبت کرنے والوں کی محبت ایک خوبصورت انجام کو پہنچی تھی۔